Okay. Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Okay. Am I audible clearly, everybody? Online, mein? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in last lecture, we have many disturbance in the PC, so we cannot complete our session in regular way. So I start with that last lecture. So you can see in last lecture we have started with this example. Find integration over C f bar into dr bar, where f bar is equal to y square I plus xyj plus xzk, and C is the curve bounded by the hemisphere x square plus y square plus z square is equal to 9. Okay, so हमने इसको स्टार्ट किया था. तो जब भी हम स्टॉक्स थ्योरम का एग्जांपल करते हैं तो वी यूज दिस for the Stokes theorem. Okay, integration over C f bar into dr bar, and Stokes theorem is for the surface integral. Okay, so surface integral के लिए हमको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, डेल क्रॉस एफ बार मींस कॉल फाइंड करना है, तो हमने कॉल फाइंड कर दिया था. देन सेकंड वी हैव टू फाइंड द एन बार. ओके, सो एन बार में हमको क्या करना है? डेल इनटू 5 करना है. सो वी कंप्लीटेड दिस. सो डेल 5 बाय डेल एक्स आई प्लस डेल 5 बाय डेल वाई जे प्लस डेल 5 बाय डेल जेड के, और उसकी हेल्प से हमको जो 5 दिया था हेमिस्फीयर वाला है ना, उसको हमको 5 बोल दिया था. ओके, और उसकी हेल्प से हमने एन बार निकाला. If you have the n bar, then your n cap will be n bar divided by मॉड्यूलस ऑफ n बार. सो आपने यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ये हमने कंप्लीटली किया था, है ना. 2xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ 2 विल बी कैंसल आउट क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर इन अंडर रूट x square plus y square plus z square, but what we have, x square plus y square plus z square is equal to 9. So we substitute here 9. So the square root of 9 will be 3. So our answer for n cap is xi plus yj plus zk divided by 3. Now next step is to find the ds. Okay, ds के लिए हमको क्या करना होता है? प्रोजेक्शन लेना होता है. So we start with the projection on the xy plane. Okay, xy plane में जैसे ही प्रोजेक्शन फिक्स करते हो तो आपकी ds की फॉर्मूला हो जाती है dx dy डिवाइड बाय n कैप इनटू k कैप. अब हमारे पास n कैप है, यहाँ पे देखो xi प्लस yj प्लस zk डिवाइड बाय 3, एंड k कैप तो रेगुलर जो k कैप होता है वो dx dy as it is. Now if you find the dot product of these two vectors, then I component is 0 here, so 0 plus z. Okay, that is our answer. So यहाँ पे आपको मिल जाएगा z into 1 by 3. So your answer is z by 3. So if you reverse it or inverse that, then 3 by z into dx dy हो जाएगा. So that is our third. Now we go for the Stokes theorem. So Stokes theorem के लिए जाते हैं तो इंटीग्रेशन ओवर c f bar into dr bar हो जाएगा. So double integration over s del cross f bar into n cap into ds. Now substitute the value of del cross f bar. तो वो हमारा ये था. n cap का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. So this is my n cap. And ds का अभी लास्ट फाइंड किया 3 by z dx dy. Now find the dot product of these two vectors. So I component is 0. So 0 plus y into z. So 0 minus z into y by 3 minus y into z by 3 into 3 by z dx dy. So here z will be cancel out because यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 times yz ही है. Okay, so 2 times yz है तो यहाँ पे हो जाएगा minus 2 zy divided by 3 into 3 by z. So z will be cancel out, 3 will be cancel out. So we have minus 2y dx dy. अब इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना था, तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज द पोलर फॉर्म. So x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and dx dy is equal to r dr d theta. तो यहाँ पे सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है? So after projection, this surface is transferred into the circle x square plus y square is equal to 9. So what should be my radius? 3 है ना, maximum radius is 3. So यहाँ पे आपकी r की लिमिट हो जाएगी 0 to 3, and I have the hemisphere. So hemisphere में कैसा होता है? So ये full circle आएगा. Okay, तो ये full circle जो surface है तो आपका hemisphere हो जाएगा, और due to the full circle we have the limit of theta as 0 to 2 pi. Now if you find out the double integration, then you will get the 0 answer. Okay, so your surface integral will be 0 for this example.
सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? ऑनलाइन वालों को लास्ट में ये थोड़ा डिस्कशन रह गया था, सो आई रिपीट इट. ओके, डन एवरीबॉडी? ये हमने लास्ट में कर दिया था. इज इट ओके स्टूडेंट? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो हो गया था ना हमारा. यस, ओके. देन वी ऑल्सो स्टार्ट दिस एग्जाम्पल, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम, है ना. ये भी हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमारा पीसी का प्रॉब्लम हो रहा था, हैंग हो गया था, तो ऑफलाइन वालों को मैंने आधे तक पहुंचा दिया है ना, आधे तक कर दिया था ना हमने. ओके, सो यहाँ पे देखो, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर एफ बार इज इक्वल टू this one over the surface of cube, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 2, z is equal to 2 above the xy plane. Okay, verify the Green's theorem means you have to verify both the sides, that means LHS is equal to RHS. So everybody you can see here, this is our example. यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व करके रखा है. देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे LHS is equal to RHS दिखाना है. So by Stokes theorem we have to find out this one and this one both. So ये मुझे find करना है. So we start with the डेल क्रॉस एफ बार. तो मुझे डेल क्रॉस एफ बार फाइंड करना पड़ेगा. सो मैंने डेल क्रॉस एफ बार फाइंड किया. देखो आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एफ वाई माइनस जेड प्लस 2. यहाँ पे होगा वाई जेड प्लस 4 एंड ये होगा मेरा एक्स माइनस एक्स जेड. तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया. फिर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया. सो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आई डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस एक्स जेड, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. देन डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड प्लस 4, तो क्या मिलेगा मुझे, y, है ना, क्योंकि z का 1 आ जाएगा. सो y मिलेगा. सो माइनस वाई आई कैप माइनस j के लिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स जेड, तो क्या होगा मेरा माइनस जेड माइनस माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो j के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स डेल बाय डेल जेड ऑफ y माइनस जेड प्लस 2, तो ये 0 ये माइनस 1, सो मुझे ये माइनस 1 मिलेगा. थर्ड में के कैप के लिए, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड प्लस 4, तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो 0 मिलेगा मुझे. माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस वन, सो 1 माइनस 0 प्लस 0, सो 1 मिलेगा. सो के कैप, सो आई हैव डेल क्रॉस एफ बार मुझे मिलेगा माइनस वाई आई प्लस जेड माइनस 1 जे माइनस के, दैट इज माई डेल क्रॉस एफ बार. ओके, तो मेरा डेल हो गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है, एन कैप, यस और नो. तो एन कैप के लिए यहाँ पे देखो उन्होंने जो दिया था, ये आपका क्यूब है ना. ये क्यूब में देखो आप ए बी सी ओ ई डी जी एफ, ये पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, तो ये क्यूब जो है उसमें आपको x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, ये सारे जो है वो आपके प्लेन्स है ना. ये प्लेन्स आपको ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा क्यूब मिल जाएगा. डन. ओके, अब इसके लिए मुझे फाइंड करना है मेरा एन कैप. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एन कैप के लिए S1, S2, S3, S4, S5 के लिए डिफरेंट आपको सोचना पड़ेगा. तो देखो S1 मीन्स क्या लेना है मुझे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, ऐसे करके मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट सरफेस, यहाँ पे देखो टोटल 6, क्यूब में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है. उसमें से मुझे एक बोला गया है कि ओपन है. देखो ओपन एट द बॉटम, है ना, बोला गया है ना. तो मेरे पास कितने सरफेस बचे, 5. तो 5 सरफेस के लिए मुझे डिफरेंट ये फाइंड करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं. चलो 5 सरफेस के लिए, तो S1 मेरा है ए बी ई एफ. तो ए बी ई एफ कहाँ पे, देखो आप ए बी ई एफ, दैट इज माई S1. अंडरस्टैंड, क्लियर. ओके, एक साइड हुआ पूरा. देन सेकंड वन इज ओ सी डी जी. ओ सी डी जी मीन्स ओ सी डी, डी कहाँ पे, यस, ओ सी डी जी, तो ये वाला साइड वाला है ना. क्यूब अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा. सो दिस इज योर S2 मीन्स इसके रिवर्स साइड वाला. ओके, ये जो ए बी ई एफ है उसका उल्टा साइड, दैट इज योर S2. देन थर्ड अगर ले तो बी सी डी ई. सो बी कहाँ पे, यस, बी सी डी ई, तो दूसरी साइड वाला, तो ये वाला जो अभी इंडिकेट किया है वो. ओके, दैट इज योर S3. अब S4 किसको लेना है, इसका पूरा उल्टा, ये वाला S4 हो जाएगा.
है ना, दैट मीन्स AOGF, ओके, दैट इज योर S4। अब S5 कौन सा बचा? S5 ऊपर वाला, क्योंकि ये तो ओपन है ना मेरा, है ना, तो ऊपर वाला कौन सा होगा? EFGD, ओके। सो यहाँ पे देखो FEDG वही आया ना, सिर्फ लेटर आगे पीछे लिखा हुआ। डन, ओके। सो वी हैव द 5 सरफेसेस। सो 5 सरफेस के लिए आपको पूरा स्टोक्स थ्योरम 5 टाइम्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ डबल इंटीग्रेशन ओवर S डेल क्रॉस एफ बार इंटू एन कैप ds करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ओवर S1, डबल इंटीग्रेशन ओवर S2, डबल इंटीग्रेशन ओवर S3, डबल इंटीग्रेशन ओवर S4 एंड डबल इंटीग्रेशन ओवर S5। तो हमको 5 टाइम्स ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए सोचते हैं S1 के लिए, तो देखो ABEF, तो ABEF के लिए क्या होगा? देखो यहाँ पे ABEF, तो ABEF है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है वो कौन सी साइड आ रहा है? X एंड Y साइड ही है ना, Z है ही नहीं वहां पे, यस और नो? तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो ये Y अगर यहाँ पे जाता है, देखना यहाँ पे ये Y है ना, और इसे उल्टा जाएगा X, यस और नो? तो ये जो ऊपर की साइड हो रहा है वो क्या हो रहा है? Y से ऊपर जाएगा ना हाइट में, तो ये आपका जो ये एन बार होगा उस टाइम पे क्या मिलेगा आपको? -J बार मिलेगा। क्या मिलेगा? -J बार, क्योंकि वो कहा जा रहा है Y से ऊपर जा रहा है। ओके, डन। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइड जा रहा है, नहीं ABEF के लिए तो I आ गया है, ABEF, ओके सॉरी, ABEF के लिए तो X की ओर जा रहा है ना वो, है ना, तो I कैप आएगा। लेकिन उसकी उल्टी साइड अगर ये पीछे वाला देखे तो -I होगा। सिमिलरली ये वाला J और उसकी उल्टी साइड वाला -J, और फिर ऊपर वाला K डायरेक्शन। ओके, इसे मींस X की साइड है तो I, उसका एंड बार क्या होगा? I। अगर Y की साइड है तो J, और अगर Z की साइड है तो K। ओके, और उसकी ऑपोजिट साइड आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे आप देखो ABEF में आपका एन कैप हो जाएगा I, एंड वो आपका जो प्लेन है वो x = 2 है, तो ds क्या हो जाएगा उस टाइम पे? क्योंकि dy dz आएगा ना, क्योंकि आपने क्या लिया है? प्रोजेक्शन yz प्लेन पे लिया है। कौन सा प्लेन पे लिया है? yz, तभी तो x साइड आएगा ना। डन। तो dy dz डिवाइड बाय n कैप इनटू I कैप। सो यहाँ पे n कैप I सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास dy dz होगा। तो y एंड z की लिमिट आपके पास है ही, y = 0 टू y = 2 एंड z = 0 टू z = 2। वो कहाँ पे है? आपके स्टेटमेंट में ही दे दिया है। देखो y स्मॉलेस्ट कितना हो सकता है? 0, बिगेस्ट कितना हो सकता है? 2। ओके, सिमिलरली x स्मॉलेस्ट 0, हाईएस्ट 2 एंड z भी 0 टू 2। तो सभी की लिमिट तो आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। सो यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया, डेल क्रॉस एफ बार मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था, एन कैप मेरा I है, ds मेरा मिला मुझे dy dz। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो I × I1 तो -y मिलेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। सो -y × dy dz, मेरी लिमिट है 0 टू 2, 0 टू 2 y एंड z के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y²/2 0 टू 2 -0 टू 2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4/2 -0। सो यहाँ पे 4/2 मीन्स 2 बचेगा, सो -2 मैंने बाहर ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे बचा -2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 dz, है ना। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा -2 इंटू z 0 टू 2, सो -2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना, और मेरा माइनस है तो -4 है। ओके, क्लियर? सिर्फ ये तो मिला मुझे ABCD के लिए, नहीं ABEF के लिए। ओके, सिमिलरली मुझे कितनी बार करना है? 5 टाइम्स करना है। डन, अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में इज इट ओके? पता चल रहा है ऑनलाइन में या फिर बाउंस आ रहा है? ओके, हेता को पता चला। चलो, व्हाट अबाउट अदर्स? निश्चल, राज, रमजान खान, कार्तिक,
करीना, पार्थ, सर। ओके। सो सेकंड सरफेस अगर आप देखेंगे तो H2 OCDG, ओके चलो OCDG कहाँ पे है वो देखो पहले। OCDG मीन्स इसका उल्टा साइड, तो उसके लिए एन कैप क्या होगा, एन बार माइनस आई, है ना, नेगेटिव आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस आई आ गया एन कैप, ओके। तो यहाँ पे ds अगेन dy dz अपॉन एन कैप इंटू आई कैप करेंगे तो dy dz मिलेगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पे जो नेगेटिव 4 था हमारे प्रीवियस में आंसर, वो क्या हो जाएगा, +4। डन, ओके, वही का वही है सब कुछ, सिर्फ माइनस साइन नहीं है। फिर BCDG, BCDG कहाँ पे देखो आप, BCD E होना चाहिए ना, E था ना, BCDE, हाँ यस BCDE। सो BCDE देखो आप, BCDE कौन सी साइड पे है, BCDE ये साइड वाला, तो ये कहाँ पे है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे पॉजिटिव है तो ये कौन सा होगा, एन कैप, जे कैप हो जाएगा ना, ओके डन। और प्रोजेक्शन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, y एक्सिस को रिमूव करना है, दैट मींस xz, है ना। सो आप देखो यहाँ पे नीचे xz से किया हुआ है ना, देखो ds इज इक्वल टू dx dz डिवाइड बाय एन कैप इंटू जे कैप। सो यहाँ पे आपको मिलेगा dx dz डिवाइड बाय j इंटू जे 1 हो जाएगा, सो dx dz। अब इसको फिर से, ये तो हमारा कॉल है, यहाँ पे j आ जाएगा क्योंकि एन कैप मेरा j है, और यहाँ पे dx dz वो मेरा ds है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे देखो z माइनस 1 बचेगा, फिर zx माइनस x 0 to 2 dz, सो 2z माइनस 2 क्योंकि x की जगह पे 2 रिप्लेस करना था। फिर यहाँ पे z स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2z आ जाएगा एंड 0 to 2 मिलेगा। सो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 बाई 2 दैट मीन्स 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4, ओके 0 हो जाएगा, ओके अंडरस्टैंड, क्लियर। ये थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है लेकिन पूछा नहीं गया है अब तक, लेकिन मुझे तो समझाना पड़ेगा, है ना। AOGF, AOGF के लिए देखो तो, चलो मुझे एन कैप बताओ AOGF के लिए, AOGF माइनस जे, अगर ये जे है तो ये माइनस जे हो जाएगा, डन, ओके। सिमिलरली इसके लिए भी कर सकते हो ना आप, है ना। तो ये थोड़ा देख लेना आप, मैं इसको थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, देखो AOGF मैंने आपको बता दिया माइनस जे होगा, है ना, उसका भी आंसर 0 आ रहा है। एंड फिफ्थ सरफेस का वो भी के कैप हो जाएगा, उसका आंसर -4। तो हमारा टोटल डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डेल क्रॉस एफ बार इंटू एन कैप ds क्या हुआ, पहले का क्या था -4, सेकंड का +4, थर्ड 0, फोर्थ 0 एंड लास्ट जो अभी फाइंड किया वो -4। सो टोटल सरफेस इंटीग्रल मेरा हो जाएगा -4, ओके। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम एंड वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं पूछा गया है अब तक, है ना, लेकिन अगर सेपरेटली पूछा जाता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, डन, ओके। ऑलवेज कौन सा एग्जांपल वेरीफाई में पूछा जाता है, ग्रीन्स थ्योरम, डन, ओके। ये वेरीफाई वाला आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मींस मुझे अब LHS फाइंड करना है, तो LHS मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर C f बार इंटू dr बार। तो f बार मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे f बार रख दिया, dr बार दैट मीन्स माई dxi प्लस dyj प्लस dz के। अब ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मुझे मिलेगा y माइनस z प्लस 2 इंटू dx, yz प्लस 4 आएगा, यस yz प्लस 4 है ना। सो yz प्लस 4 इंटू dy माइनस xz इंटू dz। अब यहाँ पे देखो हमको जो दिया है वो रेक्टेंगल, ये मैंने ऑफलाइन वालों को करवाया था, है ना, ये किया था ना हमने लास्ट में, यस और नो, है ना। सो यहाँ पे देखो ABCO, अब A मेरा क्या होगा, क्योंकि Z 0 है मेरा, है ना, इसीलिए सिर्फ XY में ही मैंने लिया हुआ है वन डायमेंशनल। सो ये होगा 2 0 2 2 0 2 0 0, ओके। ये कहाँ से आया, तो हमारे पास था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसका 4 पॉसिबिलिटी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस हिसाब से लिखा है, ओके। 2 0 0 2 0 0 एंड 2 2, डन, ओके।
अब इसके लिए आपको W फाइंड करना है, दैट मींस वर्क डन फाइंड करना है, तो पहले AB के विथ रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, प्लस करके BC प्लस करके CO प्लस करके OA। अब AB के लिए क्या होगा, सो AB अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसके x कंपोनेंट सेम है, देखो है ना। सो आपका dx हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे हर एक केस में आपको z तो 0 ही है दिया गया है ना। सो z इज इक्वल टू 0 लेना है, सो z इज इक्वल टू 0 लिया तो dz इज इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस एक्सप्रेशन, दैट मीन्स आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है dx इज इक्वल टू 0, dz इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ये मिलेगा 0 to 2, 0 + 4 dy। अब y की लिमिट 0 to 2 क्यों लिखा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स देखो 0 to 2 की तरफ जा रहा है। ओके डन, सो 0 to 2 आ जाएगा, सो 0 to 2, यहाँ पे 4y इसका इंटीग्रेशन, सो 4y 0 to 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 × 2 - 0, सो 8। अब सिमिलरली मुझे BC के लिए सोचना है, तो BC का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तो उसका dy 0 हो जाएगा, dz भी 0। ये सब कुछ आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये BC के लिए मिलेगा -8। ओके, सिमिलरली CO के लिए, CO मीन्स ये वाला CO, उसका एक्सप्रेशन होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए तो 0। ओके, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से आपको 4 लाइन के लिए आपको फाइंड करना था, है ना, और फिर वापस A तक पहुंचना है। तो अगर आप ये कंप्लीट करेंगे तो W इज इक्वल टू होगा फर्स्ट का 8, सेकंड का -8, थर्ड का -8, फोर्थ का 4, और अब मेरा आंसर होगा -4। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इज इट ओके एवरीबॉडी ऑनलाइन में, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। है ना, और ये मैंने जो ऑफलाइन में आए थे उनको बोर्ड वर्क से करवाया था, और ऑनलाइन वालों को रह गया था, इसलिए मैंने ये पूरा रिपीट कर दिया। डन, ओके। नाउ वी गो फॉर द अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज माय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? अब तक हमने क्या किया वो पहले आपको बता देता हूँ। हमने पहले वर्क डन डिस्कस किया, इंटीग्रेशन ओवर C f बार इंटू dr बार। ओके, फिर ग्रीन्स थ्योरम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो R क्या होता था, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy हुआ था, यस और नो, ये ग्रीन्स थ्योरम था। ओके, फिर स्टोक्स थ्योरम में हमने देखा कि दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर S डेल क्रॉस f बार इंटू एन कैप इंटू ds। तो हम इसी को लाइन इंटीग्रल को ही हम डिफरेंट वे में कैलकुलेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। फिर ग्रीन्स थ्योरम गए, दैट इज माय सेकंड मेथड। फिर हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज माय थर्ड मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ मेथड, दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करना है, तो जो हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया था ना, उसी को गॉस ने डिफाइन किया कि आप उसको डाइवर्जेंस से भी फाइंड कर सकते हो। डाइवर्जेंस से मींस डेल इंटू एफ बार इंटू डीवी, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन मींस अगर आप फर्स्ट इंटीग्रल से सॉल्व नहीं कर सकते तो डबल से करना है, और डबल से भी सॉल्व नहीं कर सकते तो कहाँ से करना है? ट्रिपल से सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, उन्होंने क्या किया था, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ले गए। किस में ले गए? सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में। ओके, तो यहाँ पे देखो, if f bar be a vector point function having continuous partial derivative in the region bounded by a closed surface S, then this equal to, this is our surface integral, है ना, f bar into n cap into ds is equal to triple integration over v del into v f bar into dv। अब del into f bar means this is my divergence, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है डाइवर्जेंस थ्योरम। अंडरस्टैंड? तो आपको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा। इज इट ओके
ऑनलाइन में पता चला? ऑनलाइन रिप्लाई तो दो यार। यस सर, चलो पार्थ ने तो लिखा यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, रमजान ने भी लिखा यस सर। यस। ओके ओके, चलो डन। सो यहाँ पे जैसे हम एन कैप तो हमको बताइए कि नॉर्मल है, वो नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो इट शोज अ रिलेशन बिटवीन, मैंने जैसे बताया ऐसे सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। वो कहाँ ले गए हमको? सरफेस टू वॉल्यूम। इसके एग्जांपल बहुत इजी है, सिर्फ ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी इजी है। देखो यहाँ यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर ऐसे दिया जाएगा यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दोनों एक ही चीज है ना। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ बार इनटू एन कैप इनटू डीएस where f bar is equal to 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap and s is the surface bounded by the planes x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 0, y is equal to 2, z is equal to 0, z is equal to 2। तो ये अगेन क्यूब हुआ कि नहीं? हमने आगे जो देखा वही का वही है ना इक्वेशंस। तो ये फिर से क्यूब हो गया, देखो इस हिसाब से। डन। सो दिस इज अगेन क्यूब। तो ये क्यूब हमारा दिया गया है, तो क्यूब के लिए मुझे डाइवर्जेंस थ्योरम फाइंड करना है। तो अगेन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हियर एफ बार इज इक्वल टू 4xz I कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस yz k कैप। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। सो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डाइवर्जेंस, दैट मींस डेल इनटू एफ बार। सो डेल इंटू एफ बार की डेफिनेशन क्या थी? कौन बताएगा? डेल F1 बाय डेल एक्स प्लस डेल F2 बाय डेल वाई प्लस डेल F3 बाय डेल जेड। यस और नो? है ना। सो यहाँ पे देखो F1 मीन्स मेरा x कंपोनेंट, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 4xz प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड। ओके, चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर एक्स जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? 4z, इसका माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, एंड यहाँ पे yz का y। यस और नो एवरीबॉडी? यही मिलेगा ना? ओके, सो मेरा डाइवर्जेंस मुझे मिल गया है। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था, वो क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ बार, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ बार इंटू एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी, यहाँ पे डेल इंटू एफ बार इंटू डी वी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर डेल इंटू एफ बार तो अभी फाइंड किया है हमने, क्या है? 4z माइनस वाई हो जाएगा नहीं है? देखो 4z माइनस वाई होगा कि नहीं है? क्योंकि माइनस 2y प्लस वाई है ना, माइनस वाई। सो यहाँ पे 4z माइनस वाई इंटू, अब देखो dv के लिए तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आइदर यू कैन गो विथ dx dy dz, यू कैन गो विथ dz dy dx, है ना। फिर आपका dy dz dx, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं ज्यादातर लेता हूँ dx dy एंड dz। ओके डन। या फिर आप dz dy dx भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंड? चलो अब इसके लिए लिमिट सोचते हैं। चलो लिमिट क्या होगा इसके लिए, वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो 4z माइनस वाई dx dy dz। नाउ थिंक अबाउट द लिमिट ऑफ x। तो हमको जो डेटा दिया है उसमें x मिनिमम कितना है? 0, मैक्सिमम 2। सिमिलरली y 0 to 2 एंड z भी 0 to 2। यस और नो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे x के लिए 0 to 2, y के लिए 0 to 2, z के लिए 0 to 2। नाउ
फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के विद रिस्पेक्ट टू करूँ तो 4z माइनस वाई पूरा ही पूरा कांस्टेंट है ना उसके लिए भी, सो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 to 2 dy dz बचेगा। अब पहले 2 सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to 2 0 to 2, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 2 into 4z माइनस वाई dy dz। यस और नो एवरीबॉडी, है ना। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो यहाँ पे देखो 0 to 2 0 to 2 और ये मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, ओके y का करना है तो ये नहीं आएगा 0 to 2, यस। अब यहाँ पे देखो 4z इंटू क्या आएगा y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ इसलिए, और y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to 2 मुझे मिलेगा dz। नाउ सब्स्टिट्यूट 2 इन प्लेस ऑफ y, सो 2 0 to 2, if you substitute 2 that means 4 into 2 8 into z minus 2 square means 4 by 2 and 0 पे तो दोनों ही दोनों 0 हो जाएंगे, so minus 0, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 0 to 2 8z minus 2 and dz। अब फिर से मुझे विथ रिस्पेक्ट टू z करना है, तो 8z square by 2 minus 2 into z and my limit is 0 to 2. So any doubt, any question up to here online में? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ बोलो। है कार्तिक, क्वेश्चन है बेटा? नहीं। ओके ओके। रीता और करीना, व्हाट आर यू डूइंग? नो डाउट सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, चलो 2 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4, सो 2 इंटू यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, 0 पे तो दोनों ही दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास मुझे मिलेगा 2 इंटू 16 माइनस 4, सो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यस 24, डन। सो आवर आंसर इज करेक्ट 24। सो हमने क्या किया, कौन से थ्योरम का यूज किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा आपने, एग्जांपल कितना इजी है ना। ट्रिपल इंटीग्रेशन से अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो आपका इजी एग्जांपल हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टोक्स थ्योरम, है ना। क्लियर, स्टोक्स थ्योरम से कम वो थोड़ा इजी है। अब यहाँ पे दूसरा कि अगर डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है तो आपको उसी को यूज करना, अंडरस्टैंड। अगर नहीं लिखा है देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम, डन, ओके। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, स्टोक्स या फिर गॉस, ओके डन। चलो, और ये हमारे यूनिट का लास्ट एग्जांपल, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना, वेरीफाई करना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये भी बहुत लेंथी एग्जांपल है। तो देखो, वेरीफाई गॉस थ्योरम फॉर एफ बार इज इक्वल टू 4xz i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप एंड s इज द सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन दिस वन। अब यहाँ पे देखो, आगे वाला एग्जांपल हमने किया कि नहीं, यस और नो। तो आगे वाला एग्जांपल हमने 5 सरफेस किए थे, याद है आपको, है ना। तो इसमें एक ज्यादा बढ़ जाएगा, 6 आएगा ना, क्योंकि इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बॉटम ओपन या फिर अपर सरफेस इज ओपन। तो यहाँ पे टोटल कितने सरफेस हो जाएंगे 6, और 6 सरफेस होने से आपका लेफ्ट हैंड साइड 6 बार आपको फाइंड करना है ओके। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ से वेरीफाई हटा के इसे बोल दूं, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फाइंड डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ बार इंटू एन कैप इंटू डी एस, तो ये मैं पूरा चेंज हो जाएगा, मेरा एक ही पार्ट करना बाकी बचा मुझे, है ना। वेरीफाई वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है, डोंट वरी। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले एफ बार दिया है तो मैं यहाँ पे एफ बार लिखूंगा, हियर एफ बार इज इक्वल टू 4xz i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप, ओके। नाउ क्या फाइंड करना है मुझे, डाइवर्जेंस, है ना। सो डेल इनटू एफ बार, फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, डेल f1 बाय डेल x प्लस
del f2 by del y plus del f3 by del z is equal to del by del x of 4xz plus del by del y of y square plus del by del z of yz. ओके, सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं. सो 4xz का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 4z, y स्क्वायर का 2y एंड yz का y. सो टोटल हुआ ये 4z प्लस 3y. ओके डन. So by Gauss theorem, that means Gauss divergence theorem, क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ओवर डबल इंटीग्रेशन ओवर s f bar into n cap into ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v del into f bar into ds. अब एवरीबडी लुक एट इट, dv नॉट s, dv आएगा dv क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है इसलिए. ओके एवरीबडी लुक एट इट. अगर वेरीफाई बोला है तो क्या करना पड़ेगा आपको LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना पड़ेगा. बट हियर आई एम गोइंग थ्रू दी RHS ओनली, है ना. अभी RHS डिस्कस कर रहे हैं और LHS के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट जो मेथड था उसी हिसाब से वो इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो मैं RHS कर रहा हूँ. सो RHS इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v डेल इंटू f बार इंटू dv. सो डेल इंटू f बार क्या है मेरे पास अभी फाइंड किया ना 4z प्लस 3y. सो 4z प्लस 3y. अगेन यू कैन सिलेक्ट योर dv, है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं. आई एम टेकिंग dx dy dz. ओके चलो लिमिट फाइंड करते हैं. यस 4z प्लस 3y dx dy dz. चलो अब लिमिट क्या हो जाएगी बताओ. x 0 to 1 है, y भी 0 to 1 है, z भी 0 to 1 है. तो ये तो बहुत इजी हो गया. सो 0 to 1 0 to 1 एंड 0 to 1. चलो यहाँ पे 0 to 1 0 to 1. अब विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो 4z प्लस 3y उसके लिए कांस्टेंट है. तो यहाँ पे x बचेगा 0 to 1 लिमिट dy dz. ओके तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा ना, 1 माइनस 0, है ना. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 4z प्लस 3y इंटू dy dz बाकी बचा. ओके नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y. सो 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4zy प्लस 3y स्क्वायर बाई 2 एंड dz लिमिट इज 0 to 1. नाउ रिप्लेस y इज इक्वल टू 1. तो क्या मिलेगा मुझे 0 to 1 4z प्लस 3 by 2 माइनस 0 पे तो 0 dz. नाउ हियर वी हैव द 0 to 1 4z plus 3 by 2 into dz. Now integrate this. So 4z square by 2 plus 3 by 2 into z and limit will be 0 to 1. So if you replace 1 then 4 by 2 plus 3 by 2. तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 by 2. yes or no? Correct answer. Done. So any doubt for RHS? Anybody? ऑफलाइन में नहीं है ना, ऑनलाइन में एनी डाउट? नो सर. ओके तो देखो ये थोड़ा इजी है गॉस डाइवर्जेंस, है ना. तो मेरा RHS हो गया. अब LHS कैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखो. चलो एवरीबॉडी लुक एट हियर. LHS भी है मेरे पास सॉल्व किया हुआ. देखो ये मेरा क्यूब है. सिर्फ लास्ट एग्जांपल में क्या हो रहा था 2 2 था ना, 0 to 2 0 to 2 0 to 2. यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 0. ये जहाँ पे 2 था वहां पे 1 आ जाएगा. सो अगेन मेरे पास 6 सरफेस है. यू कैन सी हियर 6 सरफेस A B E F, सेकंड O C D G, B C D E, A O G F, F E D G एंड A B C O. अब 6 सरफेस के लिए आपको इंडिविजुअली
स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ओवर S1, इंटीग्रेशन ओवर S2, इंटीग्रेशन ओवर S3, इंटीग्रेशन ओवर S4, इंटीग्रेशन ओवर S5 एंड इंटीग्रेशन ओवर S6 करेंगे। ओके एक बता देता हूं तो बाकी के सारे देख लेना, है ना। ओके तो यहाँ पे देखो ABEF कहाँ पे है, देखो चलो ABEF दैट मीन्स मेरी साइड पे है। अगर PC है तो वो मेरी साइड हुआ, तो मेरी साइड कौन सी है, X डायरेक्शन है। X डायरेक्शन में मेरा n कैप कितना हो जाएगा, I कैप, है ना। X पॉजिटिव X डायरेक्शन में I कैप हो जाएगा, तो मेरा n कैप हो गया I कैप। मेरे पास F बार तो है ही, ऑलरेडी मुझे दिया है। अब मेरा DS की बात करता हूँ, तो DS क्या होगा, मेरा X साइड पे मैं हूँ तो कौन सा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा मुझे, YZ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा YZ लेना है ना, क्या गया, यस YZ दैट मीन्स DZ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ n कैप इंटू YZ आया तो I कैप आएगा, है ना, क्योंकि X की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा DYDZ डिवाइड बाय I कैप इंटू I कैप, तो टोटल हो जाएगा 1, सो DYDZ क्या हुआ, तो बोलो, ऊपर से जा रहा है या फिर मजा नहीं आ रहा है, दोनों में से एक ही हो सकता है। देखो 3 थिंग्स स्टोक्स थ्योरम में हमको क्या चाहिए, 3 थिंग्स चाहिए। एक कॉल चाहिए हमको, है ना, फिर n कैप चाहिए, NDS चाहिए। ये अगर 3 है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ABCD में देखो मेरा x इज इक्वल टू 1 है तो n कैप I कैप हो गया। सो मेरा dx मैंने अभी आपको दिखाया DYDZ। अब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, देखो f बार इंटू n कैप करेंगे तो f बार इंटू I कैप मेरा हो जाएगा 4z बचेगा सिर्फ ये वाला। सो 4x की जगह पे फिर 1, है ना, वो 1 भी रखना है, तो 4z इंटू DYDZ हो गया। अब इसको इवेल्युएट करना है, तो इसको इवेल्युएट में तो बहुत इजी है, 4z इंटू y 0 to 1, सो 1 आ जाएगा, सो 4z। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4z स्क्वायर बाई 2 0 to 1, सो 1/2 माइनस 0, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे। सिमिलरली यू हैव टू थिंक अबाउट अदर 5 सरफेसेस। ओके यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, एक बार शांति से देख लेना, अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना। मुझे पता है, आई एम श्योर अबाउट इट, यू विल नॉट आस्क मी, है ना, आप देखने ही नहीं वाले हो, लेकिन मैं तो ऊपर भी बता रहा हूँ, है ना। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडे सेशन ऑनलाइन में? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके अब देखो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, तो ये यूनिट में ये प्रैक्टिस वर्क एग्जांपल भी है, वो मैं भी आपको दे दूंगा, है ना। उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे पूछना पड़ेगा। ओके अब दूसरा क्विकली 2 मिनट्स में मैं आपको बता दूं जल्दी। सबसे पहले हमने क्या किया था, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले वी थिंक अबाउट दी वर्क डन, किसके लिए हमने डिस्कस किया था, वर्क डन, दैट मींस लाइन इंटीग्रल ओवर C F बार इंटू dr बार। फिर हमने क्या किया, ग्रीन्स थ्योरम, दिस इक्वल टू क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर R डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y and dx dy, that is my Green's theorem, that means Green's theorem GT। ओके फिर इसी को हमने टारगेट करके स्टोक्स थ्योरम डिफाइन किया। सो दिस इक्वल टू क्या था, स्टोक्स थ्योरम में डबल इंटीग्रेशन ओवर S डेल क्रॉस F बार इनटू n कैप इनटू ds। सो दिस इज माय स्टोक्स थ्योरम। अभी आज हमने क्या किया, इसको फोकस नहीं किया, किसको फोकस किया हमने, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल में इसके लिए हमने सोचा, तो गॉस ने हमको बताया कि दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन और V डाइवर्जेंस ऑफ F बार इनटू dV। सो दिस इज होल यूनिट। ओके नंबर 1 मींस ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकंड मेथड था, ये हमारा थर्ड मेथड एंड दिस वन इज
4 और ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम DGT. ओके, सो दिस इज आवर यूनिट नंबर 4 वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, सो गुड डे, टेक केयर एवरीबॉडी. ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों को भी गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सर. बाय सर. बाय, गुड डे सर. गुड डे. ओके, थैंक यू सर. नेक्स्ट क्लास से हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना, कर्व फिटिंग.